Television gives everyone an image, but radio gives birth to a million images in a million brains. With this note, a very warm welcome to one and all present here. I, Vaishnavi, welcome you all to day 2 of Kritika 2021, Convention of Media Students, organized by DME Media School, Delhi Metropolitan Education, Noida, a premier college affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University and affiliated and approved by Bar Council of India. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and students through academic and co-curricular activities. Major flagships events and initiatives of the school include BG Varghese Lecture Series, Peer-to-Peer FDP, International Film Festival SIFI, and International Conference ICANN. And Kritika, Convention of Media Students. And newly added in the list is WIS Vibrant India Series. The 3-day Convention of Media Students is being conducted from October 11 to 13th, 2021 on the theme United India Unique Minds. The hashtag of our event is hashtag Youth for India. Our media partner for Kritika 2021 is Jai Hind Times. The event is powered by Spark, the student body of DME Media School. Spark, that is students with positive attitude and resonating communication. Kritika 2021 is a convention of media students, aims to provide a platform to engage media students in thought-provoking discussions, debates, and discourse, and enhance their confidence and personality through their deliberations and develop conciseness among the media students for responsible and accountable professional conduct. Kritika 2021 includes 8 live competitions, 7 pre-submission events, and 3 workshops. Today, I welcome you all to RJ Hunt competition, and the theme for the competition is Digital India. We are delighted to see the participation of students from various universities. I am feeling honored to welcome the judges of the event. The judges of our competitions are Ms. Garima Tharija and Ms. Divya Malhotra. Before we start today's session, I would like to invite Professor Dr. Sushmita Bala, Head DME Media School, to say a few words. Thank you, Vaishnavi. Hello, everyone present here. Welcome Ms. Garima Thareja and Divya Malhotra as a judge. So, RJ competition is मेरे ख्याल से बहुत interesting होगा और जिन्होंने भी वर्कशॉप अटेंड की है उन्होंने तो काफी कुछ डूज एंड डोंट समझ लिए हैं कि हमें कैसे करना है. So, they know about everything. So ready for the show and all the best to every participant. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I would like to introduce our judges. Our first judge is Ms. Garima Thareja. Ms. Thareja is a radio jockey, a producer by profession, avid reader, and a music lover by passion. After a degree in mass communication from IP University, she started her career in the radio industry. After spending 7 years with brands like Red FM 93.5, Radio 194.3, and Radio Mantra, working on great shows like Sharma Ji Se Poocho, Super Hit Music Show, Garima's Casting Couch, and Velapanti.com, she decided to take a break from work and focus on her personal life. Now, coming to our alumni judge, Ms. Divya Malhotra. She has served as a contributing writer to Aesthetic Indian magazine and has received accolades for exceptional contribution to fitness. She has interviewed delegates like Kangana Ranaut, Akansha Sharma, Padma Vibhushan, Birju Maharaj, and many more. Ms. Divya Malhotra is currently serving as an entertainment journalist at Asian News International, one of India's oldest and most prominent news agencies. Now, let's move towards our event and begin it. The rules and regulations of RJ Hunt competitions are: participants can present in either English or Hindi. Time limit will be minimum 3 minutes and maximum 4 minutes. After 3 minutes, you will be intervened by Ms. Sukriti Arora. Participants should ensure that their camera is on. Decisions made by the judges will be final and binding. Participant must ensure that no offensive words are used. There should be no plagiarized content.
The parameters on which the participants will be judged are presentation, concept, and content. So, the first participant is Ananya from Delhi Metropolitan Education. हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब इंडिया और गुड मॉर्निंग दिल्ली। आप सुन रहे हैं दिल वालों की दिल्ली आरजे अनन्या के साथ सिर्फ रेडियो मिर्ची पर बिकॉज इट्स हॉट। तो कैसे हैं सब? आई रियली होप सब अपने अपने घर में भले चंगे हो, एकदम फिट एंड फाइन, क्योंकि मुझे तो हो गया है कॉमन कोल्ड। आजकल वायरल का मौसम चल रहा है, ऊपर से 2 साल से कोरोना है कि सर पर चढ़ के बैठा है यार, जाने का नाम नहीं ले रहा। खैर यू कैन रियली ब्लेम कोरोना, जब इंडिया जगह ही इतनी प्यारी है कि इंसान हो या वायरल किसी का जाने का मन ही नहीं करता, है ना। खैर नवरात्र चल रहे हैं और हमें घर में बंद है, कह रहे बाहर नहीं जा सकते, और यार अब तो कुछ लहसुन प्याज का भी नहीं खा सकते, एंड लाइफ इज गेटिंग रियली बोरिंग क्योंकि अब यार आई रियली मिस माय मोमोज, पर नवरात्र में खा भी नहीं सकती क्योंकि मम्मी मारेगी। खैर मेरे घर पे लकीली मेरे सिबलिंग्स मुझे एंटरटेन करने के लिए है और आपके साथ आपको एंटरटेन करने के लिए मैं हूँ। तो कल मेरे घर पे कुछ बहुत ही फनी हुआ। मेरा भाई कल घर पे चिकन ले आया नवरात्रों में। समवन कैन बी सो डम, और मम्मी को पता लग गया। उसके बाद बिना दिवाली पटाखे बजे हैं। खैर आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया के बारे में, लेकिन इससे पहले हम इस टॉपिक पर बात करना शुरू करें, मुझे सुबह सुबह किसी ने एक बहुत ही बढ़िया गाना सजेस्ट किया, जो नया नहीं है पुराना है, लेकिन यार ये गाना मेरा भी फेवरेट है और ये गाना है ही इतना बढ़िया। तो आप सुनते रहे रेडियो मिर्ची पर दिल वालों की दिल्ली ओनली विद आरजे। खैर आपके फेवरेट गाने हम बजाते रहेंगे सिर्फ रेडियो मिर्ची पर। तो आप जल्दी मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप कौन सा गाना अगला सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैं बजाऊंगी वो आपके लिए रेडियो मिर्ची पर। तो टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले थे रेडियो मिर्ची की आज हम बात करने वाले थे डिजिटल इंडिया पर। डिजिटल इंडिया का इससे बढ़िया एग्जांपल और क्या हो सकता है यार, कि मैं अपने घर पे किसी कोने में बैठी हूँ, आप कहीं बैठे हैं, लेकिन हम फिर भी एक छोटी सी स्क्रीन पर एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं। आज हम चांदनी चौक से चाइना जा सकते हैं, एमजे रोड से एम्स्टरडैम जा सकते हैं, इंडिया में बैठे बैठे लंदन से शॉपिंग कर सकते हैं, अपने बिल्स पे कर सकते हैं, वो भी घर पे एक टेबल पे बैठ कर सिर्फ एक टैप से। इजंट दिस इनक्रेडिबल? आपको याद है कि कभी एक छोटे से डॉक्यूमेंट पे साइन कराने के लिए हमें घंटों सरकारी दफ्तर में लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, और इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो काम 1 घंटे में होगा, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, या एक साल में भी हो जाएगा। यार सब कुछ कितना हेक्टिक होता था। और एक साइन करने के लिए पहले हमें डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते थे, उसमें साइन करो, फिर उसे पोस्ट करो, फिर वो बाय एयर, बाय ट्रेन या बाय बस अपने अपने पते पर जाया करते थे। उसके बाद उसमें इतना वक्त लग जाता था यार, सब कुछ कितना हेक्टिक था। पर आज हम दुनिया के किसी भी कोने पर बैठकर कहीं भी किसी भी टाइम दुनिया के किसी भी कोने तक कुछ भी भेज सकते हैं, चाहे फिर वो पैसे हो, चाहे फिर वो डॉक्यूमेंट्स हो। किसको पता था कि सरकारी काम से तेज सरकारी नेटवर्क्स होंगे, है ना। खैर आप मुझे बताएं कि आप डिजिटल इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, रेडियो मिर्ची की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल या ट्विटर हैंडल पर जो है रेडियो मिर्ची हाइफन अनन्या हाइफन दिल वालों की दिल्ली। अब भी तो देखिए कि ऑनलाइन इंडिया ऑफलाइन सोचता क्या है। तो जल्दी से अपने कमेंट्स में, हमारे कमेंट्स में बताइए कि आप डिजिटल इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, और वो ओपिनियंस अच्छे हो या बुरे हम आपको अगले शो में जरूर बताएंगे। तब तक आप इस उभरते आर्टिस्ट का एक नया गाना सुनिए, क्योंकि ये आर्टिस्ट बहुत ही बढ़िया लिखता है यार। आर्टिस्ट का नाम है विलन और गाने का नाम है चिड़िया, और ये गाना प्रोड्यूस किया है डार्क म्यूजिक कंपनी ने, और ये मेरा फेवरेट है। तेरी मुलाकात Coming up next is Dipanshu from Lance School of Mass Communication.
फीवर 104 पर आप सभी सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो कूल मॉर्निंग अपने फेवरेट आरजे आरजे दीपांशु के साथ। और आज के शो की शुरुआत और आज के शो पे होने वाली बात सबको एकदम खासम खास है मेरे यारों, क्योंकि आज के शो पे आपको तड़ाके भी मिलेंगे, साथ में धमाके भी होने वाले। और मैंने सोच लिया आज अपनी दिल्ली की जनता को ना अपने शो के साथ ही ना हवा की सैर भी करवा दूं, क्योंकि जिस बारे में मैं बात करने वाला हूँ ना वो आसमान की उन बुलंदियों को छू गया ना कि मुझे लगता है ना कि हम सभी को सेम लेवल पे जाके बात करनी चाहिए। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप, मैं और हमारा शो सब कुछ आसमान पे जाने वाला है। खैर ये तो थी एक प्यारे सा जुमला, मगर अब मैं आपको बता दूं कि आज के शो पे मेरा टॉपिक क्या है। आज मैं बात करने वाला डिजिटल इंडिया के बारे में। हम सभी जानते हैं हमारे प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को 1 जुलाई 1915 क्या है, कंटिन्यू Yes, please go. मैम, स्टार्ट से या यहीं से ही? डोंट स्टॉप इन बिटवीन, अटक जाते हो कोई बात नहीं, वहीं से शुरू करो। इट्स ओके, इट्स अ नेचुरल थिंग, कैरी ऑन। ओके। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन सभी की इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2015 में किया था, और हम सभी, और आज 2021 चल रहा है। इसने हम सबको ऐसे घेर लिया है ना जैसे चींटियों का झुंड किसी मीठी चीज को घेरता है, या होली के दिन उस इंसान को घेरा जाता है जो हमेशा रंग लगवाने से बच जाता है, या मैं कहूँ कि जो मेरा फेवरेट है कि दुल्हन की तरफ से आई हूँ कि सारी दोस्त अपने होने वाले जीजा जी को घेर लेते हैं क्योंकि उनके जूते जो चुराने होते हैं। ये मेरे साथ कब होगा? खैर ये तो मैं इधर उधर भटक जाता हूँ, मगर इस योजना का मेन मकसद हमेशा से यही था कि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा दी जा सके और ई इंटरनेट को दिए जा सके, साथ ही गवर्नमेंट की सारी चीजें ग्रामीण इलाकों में डिजिटली पहुंचाई जा सके। और हम सभी जानते हैं जब ये लॉन्च हुआ तब इंटरनेट की सुविधा ऐसी थी इंडिया में कि मगर कहते हैं हर कहानी में एक शूरवीर आता है, तो इस कहानी में शूरवीर का जन्म हुआ जियो के नाम से, जिसको हम सभी ने बाहुबली बाहुबली बोल के तो अपने साथ बैठा लिया। और जियो ने एक रेवोल्यूशन ला दिया, जहां जियो ने इंटरनेट सस्ता नहीं किया, साथ ही फ्री ही कर दिया और डिजिटल इंडिया को एक नंबर ऊपर कर दिया। और डीमोनेटाइजेशन के बाद से तो हम सभी जान गए कि हर किसी के पास हमने डिजिटल मनी से आदान प्रदान देगा, एक छोटा रिक्शे वाले से लेकर भी एक सब्जी वाले तक भैया भी हमें डिजिटल पेमेंट देते हुए नजर आए। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि दुनिया नहीं बदल रही है, देश बदल रहा है, और मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। खैर आप सभी को हवा में तो मैं ले जा चुका हूँ, सोच रहा हूँ एक कांटा भी लगा था, क्योंकि नेहा कक्कर, टोनी कक्कर और वन एंड ओनली योयो हनी सिंह की आवाज में आप सभी के लिए गाना आ रहा है कांटा लगा, ओनली ऑन फीवर 104.8 FM। थैंक यू। The next performer is Shilpa from Bharatiya Vidya Bhavan. Shilpa, are you ready? Please turn on your camera. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका रेडियो में G98.3 FM में। आप सुन रहे हैं हमारा शो काम की बात शिल्पा के साथ। आपको पता है हम सबकी जिंदगी में आजकल सबसे जरूरी चीज क्या है, जिसके बिना आजकल एक पल भी बैठना मुश्किल हो चुका है, लेकिन जिसने हमारी हर मुश्किल को आसान कर दिया है, वो चीज है इंटरनेट। सही बात है ना? इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को आसान ही इतना कर दिया है कि हम कहीं पर भी जाएं और हमें नेटवर्क या इंटरनेट ना मिले तो हम कैसे बौखला से जाते हैं ना। आप सबका तो पता नहीं, लेकिन मेरी हालत तो जरूर खराब हो जाती है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले की दुनिया और अब की दुनिया बहुत अलग थी। पहले जब किसी को रास्ता पूछना होता था तो गूगल मैप्स नहीं होते थे, तो काम आते थे वो गली के नुक्कड़ पर बैठे बूढ़े अंकल, जो रास्ता तो सही बताते ही थे, लेकिन साथ ही साथ एक फ्री की एडवाइस भी देते थे कि बेटा अगर किराने का सामान लेना है ना तो नुक्कड़ की शॉप पे जो भोलू की दुकान है वहां से लेना, वो 5 रुपए सस्ता भी लगाता है। तब के जमाने में अगर किसी को भूख लगती थी और बाहर जाने में आलस आता था तो जोमेटो या स्विगी नहीं होते थे, तो बस किसी रिश्तेदार या दोस्त को फोन करो और पूछो कि भैया आपको हनुमान गली में है ना, तो जरा मेरे लिए आते हुए रामू जी की दुकान से एक छोले भटूरे की प्लेट ही लेते आना। और पेमेंट्स की तो बात ही छोड़ दो। अगर बाय चांस आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और अपना वॉलेट घर भूल गए तो क्या बर्तन मांजने के लिए तैयार हो जाओ? लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप अपना वॉलेट घर भी भूल गए तो कोई बात नहीं, फोन है ना, फोन से यूं पेमेंट करी और वहां से पेमेंट रिसीव हो गई। लेकिन जो भी कहो, अगर अब ये रिस्क तो आपके हर चीज में होता ही है। अब देखो ना, अगर आपने सोचा कि फोन से पेमेंट कर देंगे और अपना वॉलेट जानबूझ के घर पे भूल के चले गए और वहां जाके पता चला कि वहां नेटवर्क नहीं है या वाईफाई नहीं है,
तो क्या बर्तन मांजने के लिए तैयार हो जाओ। और माना गूगल मैप्स रास्ता सही दिखाते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स तो वो अंकल ही बताते हैं ना। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि डिजिटल होना अच्छी बात है, डिजिटाइजेशन अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरी चीज के लिए भी रेडी रहना चाहिए। बहुत हुई आज के लिए ज्ञान की बातें। अब सुनते हैं हमारा अगला गाना, मेरा जूता है जापानी, मुकेश जी की आवाज में। शुक्रिया। You have a lovely voice, Shilpa. So, the next performer is Pavel Agnidiksha from KR Mangalam University. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मशाकाई, जय जिनेंद्र, सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं आरजे अग्निदीक्षा आप सभी का स्वागत करता हूं 98.3 एफएम से पॉवेल की पाठशाला में। कहते हैं कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, किससे कहानी कथानक नहीं आए हैं, और यकीनन आपने ही पुकारा है हमें। हम आज यूं ही अचानक नहीं आए, तो जी हाँ, हम यहाँ यूं ही अचानक नहीं आए हैं। हम आज एक बड़े ही दिलचस्प टॉपिक के साथ आप सभी के साथ जुड़े हैं, और उस टॉपिक का नाम है डिजिटल इंडिया। अगर इस लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में सभी घर में बंद होकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ही अपना टाइम ज्यादातर स्पेंड किए हैं। इवन अगर हम देखें स्कूल, कॉलेजेस और हमारे जो पापा काम कर रहे हैं आजकल, वो भी घर से ही काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं काम करते करते चोरी छुपे पीछे पीछे इंस्टा और व्हाट्सएप पे अपनी फ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से बात करते, पता नहीं वो किससे बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी घोटाला होता है। और अगर बात करें हम शहरी क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की एक पहल थी कि लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली जो है सारी सुविधाएं मोबाइल पर देने की, एक फोन के टैब पर, तो कहीं ना कहीं ये सफल दिखती है अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें। लेकिन आज हम कुछ हट के बात करेंगे, और जो जहां पर गवर्नमेंट असफल दिखती है डिजिटल इंडिया के मामले में, हम उस विषय पर बात करेंगे। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां पर लोगों के घर में, हर एक घर में एक फोन होना बहुत बड़ी बात है, और अगर फोन है तो स्मार्टफोन होना, और अगर स्मार्टफोन है तो उनके पास इंटरनेट होना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जियो के आ जाने से फ्री नेट की सुविधा सबको ही उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां आज भी लोग बैंकों की लाइन में, बड़े बड़े लाइन, घंटों लाइन में खड़े रहकर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, जो काम कुछ मिनटों में फोन के द्वारा हो सकता है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप्स उठाएगी जिससे ग्रामीण इलाकों में भी जो डिजिटल इंडिया है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अगर और इसके लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप देखते रहिए 98.3 एफएम पॉवेल की पाठशाला, और सुनते रहिए नेहा कक्कड़ की आवाज में ये गाना कांटा लगा, क्योंकि कांटा तो लगा है ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं जो डिजिटल इंडिया का उपयोग नहीं कर पा रहे। धन्यवाद। The next Pavel, would you part like to, sorry to interrupt. Pavel, would you like to do it again? Because you exactly copied what Dipanshu did. Even the song was same. The content was absolutely same. Take your time, and if you want to prepare a script again, please do it. The next participant is Madan Lal from Delhi University. नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस रेडियो शो में, मनोरंजन के साथ ज्ञान प्राप्त करने का सबसे उत्तम स्थान। मैं हूं आपका होस्ट मदन शुक्ला, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म DU से। आपने बचपन में परियों की कहानियां जरूर सुनी होंगी, जिनके हाथ में एक छड़ी होती है जिसका उपयोग करके वो कोई भी काम फटाक से कर सकती है। आज आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके मोबाइल फोन की। इसके मदद से आप कोई भी सरकारी काम यूं ही फटाक से कर सकते हैं। अब आपको लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी, दफ्तर के चक्कर नहीं काटने, बस अपना मोबाइल उठाइए और सभी सरकारी काम यूं ही फटाक से करिए। डिजिटल इंडिया की मदद से डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत 2015 यानी कि आज के 6 साल पहले हुई थी। इसका उद्देश्य था कि सभी सरकारी सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ला करके बेहतर ढंग से हमको प्रदान की जाए, जनता को प्रदान की जाए। तो आज बहुत से लोग इसका लाभ उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए बात कर ही लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में। पहला जो मैंने रखा है वो है mygov.in। बहुतों के मन में एक आशा होती है कि सरकार जो नीति बनाती है वो हमारे लिए बनाती है, तो क्यों ना हम भी उसमें हस्तक्षेप करके जो सही है हमारे लिए उसको हम ला पाए। तो mygov.in है ना, आप वहां पे जाइए और जो सरकार से अपनी राय रखिए, उनसे विचार लीजिए, साझा कीजिए, सब कुछ कर सकते हैं आप mygov.in पर। जो दूसरा मैंने रखा है वो है M-किसान। किसान मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने के चलते उनकी फसलें या तो बेकार हो जाती है या तो फिर उपज कम होती है। तो
तो एम किसान की मदद से, सहायता से वो एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं, अपने प्रश्नों के जवाब जान सकते हैं, मौसम का हाल ले सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी फसल तो उगाएंगे ही अच्छे से और अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, बहुतों के अंदर कीड़ा होता है कुछ जानने का, समझने का, आगे बढ़ने का, तो आपके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ पर आपको ढेरों रिसोर्सेस मिलेंगे, और बुक्स मिलेंगी जिनकी मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो मैंने लास्ट में रखा है वो है डिजिपे। बहुतों को अपनी पेंशन नहीं मिल पाती थी, सैलरी नहीं मिल पाती थी, बैंक में तो क्रेडिट हो जाती थी लेकिन कैश नहीं आ पाता था। तो उनके लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए आप कहीं से भी अपनी सैलरी, पेंशन ले सकते हैं और मजे कर सकते हैं। तो जब इतना सब कुछ है तो हमें भी इससे जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। आप सुन रहे थे मनोरंजन भी, ज्ञान भी। मैं हूं मदन शुक्ला, धन्यवाद। Now, the next is Simran from KR Mangalam University. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सिमरन के साथ और शो चल रहा है शुभ सवेरा। आलम आरा से लेकर शिद्दत तक, राग जोगिया से लेकर राता लंबिया तक, हमारे हिंदी सिनेमा ने बहुत बदलाव देखे। फिल्मों की बात ना करके अगर हम असल जिंदगी की बात भी करें तो भी बहुत से बदलाव आए हैं। पुराने जमाने में होते तो शायद जादू ही समझते, कैसे कबूतरों द्वारा संदेशे पहुंचाया जाया करते थे, और आज एक सेकंड में बटन दबाओ और मेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। जहां गांव में बिजली तक नहीं होती थी, वहां आज गांव में इंटरनेट सुविधा मौजूद है। जहां 5 बजे उठकर राशन की लाइन में लगना पड़ता था, वहां आज एक बटन दबाओ और राशन हाजिर, वो भी आपसे पहले आपके घर पर। कमाल हो गया यार। जहां हम टीवी में खबर देखने के लिए बार बार रिमोट हाथ पर मारा करते थे, वहीं आज पूरा टीवी जेब में लेकर घूमते हैं। जहां एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हमें पूरे हफ्तों लग जाते थे, वहीं आज एक देश से दूसरे देश जाने के लिए सिर्फ 2 घंटों का सफर तय करना पड़ता है। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, कितना सर दर्द होता था कि यार कैसे भरेंगे, लेकिन आज एक बटन दबाओ, तीनों काम चुटकियों में। स्कूल जाना सजा और घर बैठकर पढ़ाई करना मजा लगता था, तो आज ये मजा घर में बच्चों को नसीब है। हाँ, आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जी। मनी ऑर्डर भेजने के बाद, जब मनी ऑर्डर भेजा करते थे तो आज ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। जहां डॉक्टर से बात करने के लिए 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, वहीं आज एक वीडियो कॉल करो और डॉक्टर से बात हो जाती है। जहां दवाइयों के लिए धक्के खाने पड़ते थे मेडिकल स्टोर के, वहां आज एक बटन में दवाइयां आपके घर मिल जाती हैं। ऑनलाइन पे, ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन बिल, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। ये ऑनलाइन नहीं तो जादू है। जादू ही कहेंगे, जादू भी नहीं, ये एक डिजिटलाइजेशन है। इंडिया डिजिटल हो रहा है, कैशलेस हो रहा है, बढ़ रहा है यार इंडिया। पहले सुना था कि समय बड़ा बलवान होता है। हाँ, समय बलवान होता है, इसका सदुपयोग करो, लेकिन सदुपयोग आज सही मायने में हो रहा है। और ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। रूप बदलेगा, डिजिटल इंडिया का भी रूप बदलेगा। वो कौन सा गाना है? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा। मेरे साथ सुनते रहो 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। Now, coming up next is Ankita Gogoi from Dibrugarh University. Good morning, Dibrugarh. I have an amazing news to share with you. Something that hasn't happened at this level in the state before. Can you guess? Yes? No? It's a massive mobile phone donation drive. Yes, it's happening. Well, you could be thinking, mobile phones, donation drives, what is so massive about it? I mean, yes, it is a basic need that has been met for many of us, but unfortunately, this is an opportunity, a need that many are still deprived of. So the good fellows at Tring Tring Ventures have come forward to lead this drive across the state. They are currently across 17 districts in Assam so far. That includes Dibrugarh, Tinsukia, Guwahati, Nagaon, to just name a few.
You can definitely look up their details on their website, which is at tringtringventures.com. I repeat, tringtringventures.com. Okay, let me break this down for you. All you have to do is go to their website, select the location that you're in. Say if you're in Dibrugarh, you go to Dibrugarh. If you're in Guwahati, you go to Guwahati. And then you register your name online, and all you have to do is drop your phone in the Dropbox. And voila, you are on the donors list. I mean, it's that simple for an amazing cause. And just to think about it, it's not solely about, young children dropping out of schools, but every opportunity that opens up because you have a mobile phone in your hand. And, and that what follows is economic opportunities, education, entertainment, knowledge, and most importantly, human connections. I mean, why should anyone be deprived of a human connection simply because they do not have a mobile phone or they belong to a different place? Technological progress is for everyone, isn't it? So, on that note, if you have a gadget that's lying unused and you have been thinking to throw that out and you feel that it's of no use, my friend, you're wrong. Do not chuck it. Let the folks at Tring Tring Ventures know that that you want to donate. And these folks at Tring Tring Ventures are going to make sure that they will make it reach the people that it needs to. Because this initiative truly adds to narrowing the digital divide that all of us keep hearing and keep talking about. And that will truly make India one day digital, one phone at a time. I mean, you all know technology is important, and let's not forget how technology enables relationships too. So I hope that you're spending good time with your loved ones. Take care of yourself, of one another, and do not forget to share your feedback, thoughts on this initiative and your idea about what truly Digital India is at Talks, which is TALKS, talks at talktalk.com. So this was definitely for our new listeners. Old listeners, come on, you know the drill. So please don't stop sharing your love, feedback, your stories with us. This is Ankita signing off from 100.1 Talk Talk FM. Keep talking. Coming up next is Malvika Suresh from Symbiosis Institute of Media and Communication. Hi, am I audible and visible? Yeah. Okay. 98.3 मिर्ची पे मॉर्निंग्स विद मालविका सुन रहे हैं आप लोग और मैं हूँ आरजे मालविका। बहुत ही मतलब प्यारा सा एक गाना सुन के हम आ रहे हैं। मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। इतना प्यारा गाना है कि क्या ही बताऊं। ये एक्चुअली मेरा ही नहीं सभी लोगों का फेवरेट गाना है क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे ये गाना के लिए। और अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये डेडिकेशन प्रोग्राम है मॉर्निंग्स विद मालविका? नहीं, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है क्योंकि ये मैं नहीं, हमारा एक श्रोता जो दिल्ली से है प्रतीक, उन्होंने कहा है मैसेज भेजते हुए कि जब भी मॉर्निंग्स विद मालविका हम सुनते हैं बहुत सारे मीठी मीठी गाने भी सुन सकते हैं, उसके ऊपर से इंफॉर्मेटिव बातें भी हमारी आरजे मालविका करती है। तो ठीक अभी 11 बजे हैं मिर्ची के स्टूडियो पे और मैं हर दिन 11 बजे एक इंफॉर्मेटिव बात करती हूँ, है ना? मतलब वो तो है ना, मैं करती हूँ ना। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया के बारे में। जैसे आई प्रॉमिस्ड, वो गाने पे जाने के पहले मैंने प्रॉमिस किया था, तो डिजिटल इंडिया के बारे में बात करने वाले। तो मैं ना 2 दिन पहले मेरे भाई से पूछ रही थी, दराव तुम्हें मालूम है कि डिजिटल इंडिया क्या है? तो मतलब ऐसे ही हर बार की तरह वो मेरा बात सीरियसली नहीं ले रहा था और वो मेरे को बोल रहा था हाँ इसमें बड़ी बात क्या है, डिजिटल है और इंडिया है, दोनों को कुल मिला दो बन गया डिजिटल इंडिया। तो क्या इतना आसान है ये जो डिजिटल इंडिया है? तो मुझे जो भी मालूम है भाई मैं आज बोलने वाली हूँ, बकने वाली हूँ। आप लोग सुनते रहिए, मतलब मुझे मालूम है आप 11 बज रहे हैं, चाय वाय पी रहे होंगे, भजिए खा रहे होंगे, तो उसके बीच में से ये हमारी जो इन्फॉर्मेटिव बात है वो भी आप सुन लीजिए।
तो ये जो डिजिटल इंडिया है ना, वो 2015 में एक कैंपेन है, वो लॉन्च किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो लॉन्च किया था। इसका ना बहुत ही एक बढ़िया फायदा ये है कि हमारे गवर्नमेंट ना बहुत सारी सर्विसेज मतलब रखती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हर एक काम के लिए हमको उनके दफ्तर जाना पड़ता है, राइट। तो ये मतलब बहुत ही आसान कर दिया है ये डिजिटल इंडिया के एक माध्यम से, क्योंकि हम घर बैठे बैठे ही सारा की सारा काम कर सकते हैं। इसका और एक ये फायदा है कि बहुत सारे रूरल एरियाज है हमारे भारत में, जहाँ पे लोगों को इतने लंबे रास्ते काटने पड़ते हैं कि पूछो ही, मतलब काम करने के लिए वो 1000 बार सोचते होंगे। तो उन सब लोगों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। एंड मेरा एक पर्सनल मतलब अनुभव बोलूं तो 2 हफ्ते पहले मैं भी निकल गई थी घर से, मतलब बहुत ही भूख लग गई थी और फ्रेंड्स ने एक जमघट बनाई तो मैं भी निकल पड़ी। और तब क्या होता, मतलब हड़बड़ी में जब भी हम निकलते हैं हमारा बक्सा, पर्स, पैसा, कार्ड सब कुछ हम घर में ही भूल जाते हैं, क्योंकि फोन तो है ही, है ना। तो मैं निकल गई और एक कांस्टेबल सर रास्ते पे खड़े होके मतलब हाथ वाथ दिखा रहे थे। हेलमेट वगैरह था, हाँ, मैं मतलब हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि हेलमेट पहना करो, लाइसेंस लिया करो, लेकिन उस दिन क्या हो गया था, हेलमेट था लेकिन लाइसेंस नहीं था। तो उन्होंने मेरे को ऐसे रुकाया और बोला कि मैडम जी कहाँ है आपका लाइसेंस, जरा दिखा तो दो। तो मैंने उनको मतलब बहुत ही ऐसा मुंह बना के बोला कि सर मैं बहुत जल्दी में एक्सेट्रा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, लाइसेंस दिखा के ही जाना पड़ेगा। तो उनको फट से ही मैंने डिजिटल लॉकर से मतलब सारे के सारे मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारा पैन कार्ड, लाइसेंस, आधार, हर एक का ना स्कैन करके हम डिजिटल लॉकर में सेफली रख सकते हैं। वो भी ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही आया है। ना सिर्फ डिजिटल लॉकर, ई एजुकेशन, ई साइन, ई जॉब, सब कुछ ई ही हो गया है, क्योंकि हमारे जो भारत में जितने भी लोग रहने हैं मतलब सिटीजन्स है, उनको इलेक्ट्रॉनिकली हमारे जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो अवेलेबल होने वाला है थ्रू दिस डिजिटल इंडिया। और जैसे मैंने अभी आपको कहा, आप शायद भजिए खा के मतलब ऐसे सोच रहे होंगे कि वाह इतना बढ़िया है क्या, मेरे को लेकिन एक राय है। तो आप आपकी बात रख सकते हैं, कुछ भी ऐसे मैटर जो डिजिटल इंडिया पे कंसर्न्ड हो, mygov.in करके एक वेबसाइट पे, एक प्लेटफॉर्म पे, mygov.in इज द प्लेटफॉर्म, और नहीं तो वेबसाइट, वहां पे आप मतलब आपकी जो भी राय है आप वहां पे बोल सकते हो। तो मतलब आप अगर ड्राइव वाइव कर रहे हो और एक मनपसंद गाना सुनने का एक बहुत ही मतलब इच्छा हो रही है, तो आप लिख लो नंबर 8138983983। ये नंबर भूलिए ना। और हाँ, मेरे को मालूम है आप लोगों को बाय हार्ट है, मतलब मन ही मन में आप रट लिए हो ये नंबर, क्योंकि इसके पीछे हमारा फ्रीक्वेंसी भी आता है ना, 98.3 मिर्ची। It's hot. Thank you. The next performer is Pooja Asnani from Chandigarh University. Yes. Am I supposed to give my introduction first or should I start right away? Right away? Okay. Yes. Thank you so much. हेलो जी, हेलो। बहुत सारा प्यार मेरे सभी दोस्तों को, उन्हें जो जिंदगी के मजे ले रहे हैं और उन्हें भी जिनके जिंदगी मजे ले रही है। बाबा सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करने का। क्या तो यार, आज मंगलवार है, दोपहर के 12:15 बज रहे हैं और जिस तरह सूरज चाचा टूट पड़े हैं ना, दिल्ली वालों के पसीने छूट रहे हैं। देखो, काफी लोगों के खाने का वक्त हो गया है, पर अगर आपके नमकीन खाने के साथ कुछ करारी बातें ना हो तो जरा आपका गरम गरम खाना भी ना ठंडा पड़ जाता है। पर आप क्यों चिंता कर रहे हो वीडू, आप तो सुन रहे हो ना 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो बेली बातें आरजे पूजा के साथ। और मैं पूजा ले आई हूँ हर दिन की तरह, कुछ तेरी कुछ मेरी और कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें आपके नमकीन खाने और दिन को और भी मजेदार बनाने के लिए। तो चलिए इसी बात पर जरा एक शेर अर्थ है, सुनिएगा। बीत गए वो दिन जब महबूब की तस्वीर को किताब के पन्नों में छिपाया जाता था। बीत गए वो दिन जब महबूब की तस्वीर को किताब के पन्नों में छिपाया जाता था। अब तो उनकी तस्वीर को फोन के होम स्क्रीन पर सजाया जाता है। वाह 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 वाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर क्या बात है कि इंडिया डिजिटल हो गया है, इसीलिए ये पॉसिबल है। पर भाई 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 भाई, इससे पहले कि आप नेहा कक्कड़ जी के इस गाने इसी आने से रिलेट कर लें अनूप सोनी के शब्दों में, भाई साहब जरा सावधान रहें, सतर्क रहें। खैर, तो हम बात कर रहे हैं आज डिजिटल इंडिया के बारे में। जी हाँ, इंडिया जितना डिजिटल हो गया है, बच्चों के तो होमवर्क भी अब स्कैन होकर जाते हैं।
बिल घर बैठे बैठे भर जाता है और शॉपिंग तो क्या ही बोलो, मम्मी पापा परेशान है यार, रोज बैग भर के घर पे डिलीवर हो रहे हैं। खैर, डिजिटल इंडिया भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक बहुत बड़ा अभियान भी है, जिसके अनुसार ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी सरकारी सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में सभी देशवासियों को उपलब्ध हो। ये 1 जुलाई 2015 में शुरू किया गया अभियान है। ये सरकार के द्वारा की गई काफी अच्छी पहल है, जिसके कारण जितने भी ग्रामीण लोग हैं उन्हें भी उच्च गति के नेटवर्क से जोड़ दिया गया है और भारत कुछ महीनों में अब सच में एक हो रहा है। भारत के डिजिटल होने का यार सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि देश के हर कोने में बैठे हर देशवासी को अपना हुनर प्रदर्शित करने का एक मौका मिल गया है। और यही कारण है कि ये जो आप रात को रील स्क्रॉल करना शुरू करते हैं ना, तो बस आप स्क्रॉल करते ही चले जाते हैं और सुबह हो जाती है देखते ही देखते। अब भारत डिजिटल हो गया भाई, तो अब लोगों का हुनर छिपता नहीं, सिर्फ और सिर्फ उभरता है। क्या? सिर्फ और सिर्फ उभरता है। चले गए वो दिन जब अरसे बीत जाते थे किसी से बात करे, उनकी शक्ल देखे। अब तो वीडियो कॉल और व्हाट्सएप का जमाना आ गया है भाई। बीत गए वो दिन जब दिन भर माँ से दूर रहने पर, माँ के घर से दूर रहने पर, माँ के याद करने पर हिचकी आती थी, क्योंकि अब तो सीधे सीधे यहाँ माता जी का फोन आ जाता है। इसी के साथ आप सुन रहे हैं ये गाना भी। जी हाँ, तू तो साड़ी केयर नहीं करता रेड एफएम पर, और कहीं जाना नहीं, जुड़िए रहिए और नमकीन बातों के लिए मेरे यानी आरजे पूजा के साथ सिर्फ और सिर्फ रेड एफएम पर क्या बचाते रहो। थैंक यू। Amazing performance, Pooja. Now, next up is Deep Nayan from Guru Nanak Khalsa College. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो घड़ी पे बज गए हैं 12:12 और आप सुन रहे हो रेडियो मिर्ची 98.3 माय एफएम। तो मैं आरजे दीप नयन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम ज्ञान के अड्डे में। शायद आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारे आज के विषय डिजिटल इंडिया के बारे में, जिसका मकसद पूरे भारत को डिजिटल माने तो ऑनलाइन बनाना है, जिससे लोगों का वक्त और साथ ही साथ उनका पैसा बचे। इस अभियान को शुरू करने वाला और कोई भी नहीं बल्कि हमारे पीएम मोदी जी ही हैं। और आपको पता है कि इसके आने के बाद बहुत से आईटी क्षेत्रों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अगर मैं बात करूं इससे मिली सुविधाओं की तो वो बहुत सारी हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस, ई क्रांति, ई स्वास्थ्य। जैसे कि आपको पता है कि आज का युग तकनीकी युग है ना? तो इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को नागरिकों से ऑनलाइन जुड़े बनाने रखने का है। इस माध्यम से अब कोई भी नागरिक कहीं पे भी बैठ के अपने फोन पे कुछ भी डाउनलोड कर सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अब वो दिन गए जब वो बैंक में लंबी लंबी लाइनों में आपको खड़ के पेमेंट निकलवाने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अब ई पेमेंट ऐप आ चुका है और इसने सब कुछ ये खत्म कर दिया है। क्या आपको पता है कि इसके बाद लोगों में कितनी जागरूकता बढ़ी है? और तो और कोरोना महामारी और लॉकडाउन जैसी कठिन स्थिति में बच्चों को ये कितना लाभदायक हुआ है, जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं हुआ पर आंखों पर असर जरूर हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक और लाभदायक सुविधा की, तो वो है डिजी लॉकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप अपने सारे जरूरी कागज जैसे कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड जैसे कागजात रख सकते हैं। और इससे ट्रैफिक पुलिस से चालान कटने का तो आपका सवाल ही नहीं पैदा होता। और भारत के किसानों के लिए अगर मैं बात करूं, डिजिटल इंडिया जैसे अभियान ने बहुत फायदा दिया है, जिससे उनको मौसम की जानकारी, खाद, बीज जैसी कई प्रकार की जानकारियां हासिल हुई हैं। ये तो बात की थी हमने इसके फायदे की, पर क्या आपको इससे जुड़े नुकसान और हानि के बारे में पता है? जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना है आपने, डिजिटल भारत से जुड़ी हानि और नुकसान। आज इसकी वजह से साइबर अपराध जैसी समस्या कितनी ज्यादा बढ़ रही है देश में, और एक देश की समस्या दूसरे देशों तक कितनी ज्यादा फैल रही है। और तो और लोगों के साथ कितने तरह के धोखे हो रहे हैं, और जो धोखेबाज है ना, वो कितनी चालाकी से फोन में आया जो ओटीपी आता है उससे पढ़ के लोगों के साथ धोखा कर लेते हैं और उनकी कीमती मेहनत की कमाई छीन लेते हैं 1 मिनट में।
जैसे कि आपको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह डिजिटीकरण में भी अनेक फायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं, और ये हम पे है कि हमने इसके फायदे उठाने हैं या नुकसान। तो आपसे बातें करते करते वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, तो आपकी आरजे लेती है आप सभी से इजाजत। और अगर आपके पास भी डिजिटल इंडिया से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और कल हम फिर मिलेंगे इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 2 गज की दूरी बना कर रखिए। धन्यवाद। Next up is Mrinal Rawat from Delhi Metropolitan Education. नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब हमारे उन सभी लिसनर्स को जो है आज रेडियो 2.0 एफएम के साथ, और इस वक्त आपकी मैं फेवरेट आरजे मृणाल आपको मनोरंजन करने के लिए आ गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, आपकी फेवरेट आरजे को आप अगले 4 मिनट के लिए सुनने वाले हैं। और आज के शो में हम बस बात करेंगे, क्यों जी, भूल गए ना आप लोग, आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे के दिन तो आपको पता ही है कि मैं आ जाती हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जिस पर मैं कुछ ज्ञान बांट सकूं। तो चलिए आपका और हमारा वक्त ना जाया करके शुरू करते हैं। सो लिसनर्स, अब अगले 3 मिनट के लिए बने रहिए अपनी आरजे मृणाल के साथ। आज के शो में हम डिजिटल इंडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिसको पहले से ही पता है कि डिजिटल इंडिया क्या होता है, तो उनके लिए बस एक रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से समझ लीजिए, और जिनको कोई भी आइडिया नहीं तो कोई नहीं, योर आरजे हैज गॉट योर बैक। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पलक झपकते ही दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है, घर से निकले बिना ही ग्रोसरीज की शॉपिंग हो जाती है, टॉयलेट में बैठे बैठे बैंक और पोस्ट ऑफिस के काम भी। याद है ना वो दिन जब एक डॉक्यूमेंट लेने या देने के लिए कैसे घंटों लाइन में खड़े रहते थे, और आज एक क्लिक से दुनिया के किसी भी कोने से उसे दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। डिजिटल लॉकर के बारे में नहीं सुना तो? हाँ, वही जिसमें आप अपने इनको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्कैन करके स्टोर करते हैं। मान लिया कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन आता है, आपका कामकाज, घूमना फिरना और खाना पीना, लेकिन साइन वो तो कंप्यूटर में घुसकर नहीं हो सकती ना। तो आप क्या करते हैं, पेपर कॉपी निकाल कर उस पर साइन करते हैं, फिर उसको एनवेलप में डालकर पोस्ट कर देते हैं, और वो पोस्ट बस से, ट्रेन से या प्लेन से, उफ 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 उफ, छोटे से काम के लिए कई दिन लग जाते हैं, पर जो वक्त भी बचाए और ईंधन भी और ऐसा भी। इसे ही तो कहते हैं डिजिटल इंडिया। और अब चुटकियों में हो गए करोड़ों काम, तो कितना तेजी से बढ़ेगा हिंदुस्तान। और जो मुश्किल काम को आसान बनाए उसे ही तो कहते हैं क्या, डिजिटल इंडिया। सो बस यहीं तक था आज का ज्ञान, और मिलते हैं इसी वक्त पर हर बार। Till then, have a great day. The next participant is Saira from Birla Global University. Due to some network issues, she could not join us today. I would request technical team to play her video. नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट आरजे सायरा, और अभी बजे है शाम के 6:10 और आप मेरे साथ सुन रहे हो 94.4 FM। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा गया होगा, ऑफिस से दिन मस्त हेक्टिक वाला दिन अच्छा गया होगा, कॉलेज का ऑनलाइन क्लासेस अच्छा गया होगा, स्कूल अच्छा गया होगा। अब बताओ कि लॉकडाउन कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है। बिजनेस वालों का, हाँ बिजनेस थोड़ा थोड़ा डाउन है, पर ऑफिस वालों का तो पता ही होगा, आईआईटी ऑफिस बहुत कठिन है, मैं समझ सकती हूँ। पर बच्चों, तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है, और टीनेजर्स आपका कॉलेज कैसे चल रहा है। कॉलेज से तो हमेशा आता होगा नोटिफिकेशन, यार कॉलेज आज खुलेगा, कल खुलेगा, आज खुलेगा, कल खुलेगा, पर खुलता ही नहीं है। क्या ही करे बच्चों, खुलेगा ही नहीं कॉलेज जब तक तुम्हारा ये कोविड खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं अभी जो बात करने वाली हूँ उसका टॉपिक है इंटरनेट। क्या आप एक दिन भी बिना इंटरनेट से रह सकते हो? नहीं ना, सेम चीज़, हम कोई नहीं रह सकते, क्योंकि आजकल अगर हमको गाना सुनना होगा तो हम यूट्यूब जा सकते हैं, कुछ अगर रिकॉर्डिंग सुनना हो तो फ़ोन उठाए, रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग हो गया, हो सकता है। कुछ किताब पढ़ना होगा, किंडल, अमेज़ॉन,
कितना कुछ है ना। पहले के ज़माने में क्या, बुक पढ़ना है, बुक लाइब्रेरी जाओ, बुक स्टोर जाओ, बुक निकालो, बुक पढ़ो। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी किंडल है, मस्त है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और कुछ भी डाउट है एग्जाम में, अभी तो जैसे ऑनलाइन मोड चल रहा है, एग्जाम का कुछ भी डाउट हुआ, गूगल व्हाट इज कंप्यूटर लिख सकते हैं। अभी ये भी देख लो, अभी अगर कुछ शॉपिंग करना होगा, ऑनलाइन शॉपिंग, अरे मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, क्या नहीं है, अमेजोन है यार, अरे ऑफर चल रहा है हर जगह, जाओ खरीदो मज़े करो। मेरी मम्मी तो हर वीक, अभी जब से ऑफर चल रहा है, मतलब हमेशा नहीं, जब से ऑफर चल रहा है तब से तो ये खरीदो वो खरीदो ये खरीदो वो खरीदो, पूरा मम्मी का शॉपिंग है शॉपिंग। नेक्स्ट इज कि ये इंटरनेट बच्चों में क्या चीज़ पॉजिटिविटी है। अभी जब से इंटरनेट आया है, बच्चे को बात करने में बहुत आराम से कर सकते हैं, राइट। पुराने ज़माने में क्या था, बच्चे को बहुत मुश्किल होता था। अब स्कूल में बोलते थे कि तुम ये पढ़ के आओ वो पढ़ के आओ, बच्चे खिड़खिड़ाते थे कि कैसे करूँ मेरे पास कुछ है नहीं। अभी गूगल में जाओ, टाइप करो, मिल जाएगा। आप लोगों को तो पता नहीं, पर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये वीडियो बना के, क्योंकि आज मुझे बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ बोलने का मौका मिला कि कुछ इंटरेस्टिंग से मैं बोल पाऊँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। ध्यान रखिए, पानी पिए, कोविड से बचे, वैक्सीन लीजिए। कुछ भी अगर छोटा मोटा सिम्टम्स आपको लग रहा है कि आपके साथ हो रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाए, इलाज करवाइए। अपने आप को सेफ रखें, अपने पड़ोसन को सेफ रखें। नमस्ते। With this, we come to the conclusion of the competition. I would like to thank all participants and judges for joining us today. The result will be announced in the valedictory session on 13th October at 5 p.m. I would like to invite Ms. Garima Tharija to say a few words. Thank you so much, Vaishnavi, and thank you so much to all the participants. First of all, okay, please don't feel that I'm demotivating you or discouraging you and all. I hope you guys listen to radio. Please talk to me. I can't do a monologue, so you guys have to talk to me. Switch on your cameras. I want to see you guys and I want to talk to you. So come on, switch on your cameras, your mics, and talk to me. Nobody has switched on the mic. So you guys listen to radio. You want to become an RJ, so you need to listen to radio. There is no other option otherwise. Yes. Who said yes? I did. Yes. Hello. वाह, मतलब लिंक देते हुए जोश ही जोश और जवाब देते हुए yes. Oh, I'm sorry. Yes, I listen to radio. Good. Others don't listen to radio. They just wanted to participate. Is it? No, we listen. No, to we radio. don't listen. No, ma'am, we No, do ma'am. listen to radio. How nice. Yes. No, Then ma'am. why your frequency and your station names were not same, and why you copied some other station and not made up something of your own? Why Fever? Why Mirchi? And why somebody combined Mirchi and My? That was so nice. Why? It's a major blunder. Blunder number 2. We never take PM Modi's name. We're not allowed to do that, especially if you are your frequency is a private frequency. You're not allowed to do it. Never take name of government ne ye kiya. You cannot do that. You want कि आपका station बंद हो जाए, so you cannot do that. Never do that. Keep that in mind. You cannot take name of any brand until and unless that brand is paying you to take their name. So no, जियो ने फ्री बैंडविड्थ दिया है. जियो को पीछे से किसका सपोर्ट आ रहा है ये आपको भी पता और ये मुझे भी पता, बट ओपनली वी कैन नॉट से दैट. तो नेवर मेंशन कि मोदी जी ने ये किया वो किया एंड देन जियो फ्री मिल रहा है. क्यों भाई, जियो ने तुमको कितने पैसे दिए हैं बताओ. So please don't do it. Secondly, we're talking about digital India. Why are we giving lecture on digital media? You don't have to say कि मोदी जी ने इसे इस दिन लॉन्च किया था, ये किया था. No, it's not an educational radio. Were you guys doing educational radio, or was it private radio, or was it all India radio? What was it? Tell me. What was your thing in your head that you were following private radio format, you were following all India radio format, or were you following educational radio format, or were you following community radio format? What format were you guys thinking about before participating here, before giving your link?
What I felt, it was all private radio stations. Huh? Everybody wanted Mirchi, Fever and all. So tell me. Guys, talk to me. Come on. Private FM. Private radio station. Private radio stations. Okay. Who else next? Ananya, Simran, Ankita. Private. तो कभी प्राइवेट रेडियो स्टेशन पे सुना है क्या? तुम्हारा फेवरेट आरजे बोल रहा हो आज हम बात करेंगे डिजिटल मीडिया के टॉपिक पर. क्यों भाई, कौन सा डिजिटल मीडिया का लेक्चर चल रहा है? So that fun, that entertainment factor was missing, because then I understand you must be thinking यार डिजिटल इंडिया पे क्या ही कोई एंटरटेनमेंट देगा, क्यों नहीं देगा? The moment your music stops and your link starts, first of all, you could have combined that, played a song, and during the song is ending, you could have faded it, and you could have started your own link on the music itself. That you must have heard on radio stations, right? Music khatam ho raha hota hai last ka, and your RJ starts talking, because many of you did that. Ye mera favorite gana hai, and you started singing. We are not in Indian Idol. So you can't sing that long. No, you cannot. Best thing is, गाना एंड हो रहा है, उसको फेड करिए, अपनी आवाज को ऊंचा करिए, एंड देन स्टार्ट टॉकिंग. आवाज नीचे रखो. साथ वाले कमरे में ना चिंटू की क्लास चल रही है, उसने यहाँ की मेरी क्लास लगा देनी है. ये डिजिटल इंडिया के चक्कर में ना हमारी लग जाती है. This is how you should have started. This is how you put entertainment. This is how you talk about digital India. We're not giving lectures, we're just telling them that we are talking about certain thing called digital India. But you all did a wonderful job. So this is for all of you. Result jaldi mil jayega. And I need to ask, I need to give one compliment to a girl called Ankita and Malvika. Both of you sound very similar to people you hear on radio. So kudos for that. But there was problem in content. Ankita, your content was very good, but the presentation and the way you said it could be changed a little bit. Same goes for you as well, Malvika. Your content was good, but too many confusions in that, too many things you added in that, and wo khichdi types ban gaya. But otherwise, it actually sounded like that, okay, I'm listening to somebody on radio. First of all, radio पे आपकी voice सबसे पहले अलग हो जाती है. बिल्कुल, अभी आप जैसे मुझे सुन रहे हैं, मैं वैसी रेडियो पे बिल्कुल साउंड नहीं करूंगी. Of course, वो almost 10 साल पहले की बात थी, तब तो और भी वॉइस में बहुत चेंज था. But radio mics have filters and everything, and the voice changes. But you two sounded very similar to that. मदन जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बिल्कुल कड़क है, लेकिन प्राइवेट रेडियो स्टेशन के लिए नहीं, ये न्यूज चैनल्स के लिए परफेक्ट है. या फिर अगर आप एजुकेशनल रेडियो चैनल या कम्युनिटी रेडियो चैनल्स के लिए ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी आवाज है आपकी. हिंदी पे पकड़ आपकी बहुत अच्छी है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. लैंग्वेज पे पकड़ होना बहुत जरूरी है. प्राइवेट रेडियो स्टेशंस ने हिंदी और इंग्लिश को मिला के जो खिचड़ी बनाई है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग है, ट्रस्ट मी. सो अपनी लैंग्वेज को प्लीज, it's a humble request, उस पे पकड़ बना के रखिए. Because if you'll notice, now they're paying a lot more focus on language. Now Fever has changed one of its station, which is Radio Nasha, if I'm not wrong, into a total Punjabi channel. Yes. So the audio is Punjabi, the content is Punjabi, and they talk, the dialect is Hindi and Punjabi, but at times they mix English as well. But if you're not going for private radio stations, and if you're going for community radio stations, or you're going for educational radio stations, or All India Radio, language पे पकड़ रखना बहुत जरूरी है. Because today in digital India, radio कुछ नहीं है. Everything has gone 360 degrees. Now you have podcasts for radio, you have audio documentaries, you have audio stories, you have so many things. Digital world has given us a big platform for all audio lovers. Please remember that. And वहाँ ये हिंदी इंग्लिश का तोड़ मोड़ entertainment नहीं चलता. It's a very serious business. So if you are working on podcast, for example,
You need to figure out what content you want, what kind of content you want. If you want typical Bollywood one, okay, Hindi include karo, English include karo, content entertaining hona chahiye, gossip honi chahiye, wonderful. That's one area. But you go, if you're getting, agar Divya ki baat karo, Divya, the co-judge with me, she's into fitness and all. If she comes up with her podcast has to be entertaining, but not at gossip level, but on a serious note. It's about somebody's health. So you cannot play with that. And उसमें आप ये नहीं कर सकते कि अरे यार एक अंडा आज खा लिया तो क्या हो गया. नहीं, you cannot do that. You need to focus on your content a lot. So voice is good, very good, but your voice cannot decide कि आप audio platform पर आ सकते हैं या नहीं. Your content has to be damn strong. So please work on that content part as well कि आप किस direction में जाना चाहते हैं, वो focus होना बहुत जरूरी है. आज thanks to this digitalization हमारा इतने सारे, if not a door, at least a window has opened for everyone to do so many things. Today, a producer and consumer on digital platform are same. You create, you edit it, and you are making it for someone else, and you are watching someone else work as well. So you are the producer, you are the consumer. You, as in the audience, is everything. So now it's up to you what you want to take in and give to others as well. So think about that. You all did a wonderful job today, and I'm really thankful to Bala ma'am, Amrish sir, and the whole team of DME for giving me this platform to share my experience with you. 10 saal pehle, okay, I started working when I was 19 or maybe just turned 20, I don't remember, but it was long back, some good 13, 14 years back. Tab itna digital nahi tha sab kuch. It was all traditional, your newspaper, your radio, your television. Yes, internet was there. Yes, Orkut was there at that time. Facebook just started. Twitter just started when I was working. It was random. Today, everything has changed. It's like pura goal ek alag hi chakkar ghum gaya hai, and you cannot play with it. So it's time to get serious now. Fun rakhiye life mein, lekin apne content par control rakhna bahut zaruri. Thank you so much, Bala ma'am, once again for bringing me again to Ritika. It's always a pleasure to be a part of Ritika. It's my 3rd year actually. This is my 3rd time coming to Ritika, and I love it every year. You guys are so enthusiastic and it's so nice. Thank you again. Thank you so much. Thank you. Now I would like to invite Ms. Divya Malhotra to say a few words. Thank you so much, Vaishnavi. Vaishnavi, right? Yes. Hi, thank you so much. First of all, many congratulations, DME. I'm so excited right now, overwhelmed. And thank you so much, Krishna ma'am, Ambrish sir, Manmeet ma'am, and everybody who is watching me right now. Like, I'm so overwhelmed right now. I was having a flashback जब वैष्णवी host कर रही थी, तो literally मुझे flashback आ रहा था कि ऐसे ही मैं वृतिका में पोडियम पर खड़े होकर ऑडिटोरियम में होस्ट कर रही हूँ शो, और 3 साल बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है. लाइक 3rd year तक भी आई वाज होस्टिंग फॉर वृतिका. एंड गरिमा मैम, मैंने उनके लिए एक्चुअली मैं होस्ट किया है एक बार शो, और मैं उनके साथ को होस्ट कर रही हूँ. तो दैट वाज, वो जज कर रही हूँ आज. तो ओवर, मतलब मैं एक्चुअली मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ वो फीलिंग. तो थैंक यू सो मच मैम. और डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, लाइक हम वृतिका पहले ऑडिटोरियम में सेलिब्रेट कर रहे होते थे और अभी हम जूम पर कनेक्ट होकर कर रहे हैं. सो दैट वाज, यू नो, सबसे पहले तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी. आपका फर्स्ट स्टेप था कि आपने आरजे आपने परस्यू करना है. ऑब्वियसली ये तो पता लग गया. मालविका है एक, मैं उनको सबसे पहले शाउट आउट देना चाहूंगी. शी वाज वेरी, मतलब बहुत अमेजिंगली उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया. एंड पूजा ऑल्सो फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आई गेस, राइट? तो आपकी इनिशियल स्टेज थी आरजे हंट में, आपने पार्टिसिपेट किया. ऑब्वियसली आप सबसे थोड़ा सा अलग हैं, और आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन देखकर लाइक जब मैं भी आरजे के लिए ट्राई करना चाहती थी, बट ऑब्वियसली अब मैं एक
अलग प्लेटफॉर्म पर आ गई हूँ, तो मैं भी बहुत साइड से देखती थी कि कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन हो सकते हैं। जैसे गरिमा मैम सेड कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, दैट डजंट मीन कि आप आरजे ही, आप एज अ आरजे सिलेक्ट हो ही जाएंगे। यू हैव टू वर्क ऑन योर कंटेंट। तो डिजिटल इंडिया आज सभी लोग प्रेजेंट कर रहे थे, तो मैंने जो चीज पर्सनली नोटिस की वो ये थी कि ऑब्वियसली आप जूम पर प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं, बाकी सभी को देख रहे हैं स्क्रीन पर, बट आप बहुत से लोग हैं जो विजुअल स्क्रीन पर ज्यादा फोकस कर रहे थे ऑडियो से ज्यादा। तो रेडियो पर आपको सुना जा रहा है, आपको देखा नहीं जा रहा है, तो आप क्लैप कर रहे हैं या ये सब कुछ, ये नोट नहीं होगा उस पर। जो आप मॉड्यूलेशन ला रहे हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, वो ज्यादा नोटिस होगा। तो अगली बार जैसे आप आगे भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप आगे प्रैक्टिस करते हैं फॉर आरजे, आगे अपने करियर के लिए, तो आप ऑडियो पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको देखा नहीं जा रहा है अभी इस टाइम पर। और डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये भी है जो गरिमा मैम ने अभी आपको बताया कि रेडियो, आप अगर आप आउट ऑफ दिल्ली जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको वो रेडियो सिग्नल कैच ही हो रहा है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहाँ पर रेडियो अभी अवेलेबल है। लाइक आप फेसबुक पर भी जाकर, अगर आप किसी, लाइक इफ यू फॉलो आरजे राहुल मार्किन और एनीबडी एल्स, तो आप उनके फेसबुक पर भी जाकर आप सुन सकते हैं बहुत सारी चीजें। रेडियो के स्टेशन के पेजेस हैं, वहां पर सुन सकते हैं। तो ये चीज भी अगर ऐड हो जाती थोड़ा सा, तो दैट वुड बी ऑल्सो बेटर अगर किसी कंटेंट में होता। बट यू ऑल वर वेरी, मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग था, मुझे इतना सारा टैलेंट देखने को मिला। तो थैंक यू सो मच वृत्तिका, थैंक यू सो मच डीएमई, इतना सारा टैलेंट लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच सुष्मिता मैम, एंड ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। मैं कुछ यहाँ पे बोलना चाहूंगी। सारे स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन हुआ, बहुत कुछ स्टूडेंट ने ट्राई किया करने के लिए, और इससे पहले काफी स्टूडेंट्स आरजे वर्कशॉप में भी थे, तो उन्होंने उसको भी फॉलो नहीं किया। जो लोग उसमें थे उनको ये बताया गया था, बहुत सारी चीजें बताई गई थी कि उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है और अपनी आइडेंटिटी बनानी है। सो मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जैसा गरिमा ने भी कहा कि आपको दूसरे चैनल्स का नाम लेना और उससे कोई मतलब नहीं है, या दूसरे को कॉपी करना उससे कोई मतलब नहीं, वहां आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आपको अपनी कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि उसमें भी मैंने पूरा देखा, बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन किया, देन एंड देयर स्पॉट पे प्रेजेंटेशन किया और बहुत अच्छा किया। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ कि हम सिर्फ ऐसा लग रहा था कि एजुकेशनल चैनल के लिए काम कर रहे हैं। दिस इज नॉट स्क्रिप्ट फॉर आरजेइंग। आरजे के लिए आपको एनर्जी का भी कमी नजर आ रही है, आपको स्क्रिप्ट में भी कमी नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों। हमें केवल चिल्ला चिल्ला के बोलना नहीं है, हमें अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को, अपने पिच को, अपने प्रोनाउंसिएशन को, हर बात को, लैंग्वेज को, सब पर काम करना होता है। और जरूरी नहीं है कि आप वहां सॉन्ग सुनाएं, क्योंकि आप डिजिटल मीडिया पे, और आप लोगों ने गाली पे स्क्रिप्ट लिखी थी और इतनी बहुत ही फंटास्टिक स्क्रिप्ट लिखी थी। तो डिजिटल मीडिया में आप इतना क्यों लैग कर गए, मुझे नहीं समझ में आया। उसमें आप बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत अच्छा कर सकते थे। आई डोंट नो हु इज विनर, बट आपको थोड़ा सा ट्राई करना है इफ यू आर गोइंग फॉर आरजे। आरजे के लिए बहुत प्रैक्टिसिंग जरूरत है, वर्कशॉप को फॉलो करना, जो भी सीखा है उसको फॉलो करना, तो अच्छे आरजे बन जाओगे। सो बस मुझे यही कहना था। नाउ ओवर टू सुकृति। मैम एक्चुअली गाली बहुत ना पर्सनल चीज है, एंड डिजिटल इंडिया इज अ वेरी एकेडमिक थिंग। तो यहाँ होगा ये सब कंफ्यूज कि ओहो, हाँ, ये कंफ्यूज कैसे दिया जाए। जैसे अभी गरिमा ने सॉरी कहाँ, दिव्या किधर गई, दिव्या ने भी बोला कि हमें यहाँ पे ये देखना था कि हम उसको कॉन्सेप्ट को कैसे लेके चलें और क्या हम बोलें। तो उसमें जरूरी नहीं है, जो इसीलिए मैंने लाइट और हार्ड दोनों वर्ड्स की बात हो रही है कि गाली में जो आपने बोला उसमें आप क्रिएट कर सकते थे। तो डिजिटल मीडिया में जब आप कह रहे हैं कि हम सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं और दूसरे जगहों से जुड़े हुए हैं, दूसरे शहरों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए तो बहुत कुछ था कहने के लिए। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए था। सो ओके, देखते हैं रिजल्ट क्या कहता है। सो नाउ सुकृति,
Over to Sukriti, yes. Thank you so much, Bala ma'am. And my first vote of thanks goes to Ms. Garima Thareja and Ms. Divya Malhotra for taking out your time and encouraging our participants, and also for your valuable inputs. I'm sure that the students have not just found this as an opportunity to present their talent, but also to learn something new from this competition and also learn from each other. We learn from our mistakes, we learn from others' mistakes as well when opportunities like these are provided. My heartfelt thanks goes to students who have joined here today, all of the participants. Thank you. I appreciate your zeal to learn something extra outside of the classroom and for showcasing your talent here. I hope that you keep this up. I would like to extend my immense gratitude to the management of DME. Without the support of Mr. Aman Sahani, Vice Chairman, Honorable Justice Bhavar Singh Sir, Director General of DME, and Dr. Ravikant Swami, Director of DME, we would not have come this far. Thank you for providing the support and the resources to execute our programs. I'm also thankful to Dr. Ambrish Saxena, Dean DME Media School, and Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, for their constant guidance and encouragement at every step. I thank Jai Hind Times, our media partner, and Spark, the student body of DME, named as Students with Positive Attitude and Resonating Communication. I also thank the entire team of Ritika for the flawless execution of all the programs. And lastly, a vote of thanks to all my colleagues for being wonderful teammates one can rely on. Thanks a lot for joining us today. This is all.